जैसे ही इसने पंख फैलाए, it started to sing a song. Why? Because he was very happy. Why he was happy? Because he got elected indirectly. He was happy. He was singing song. Just imagine, एक मोर है, उसके बाद उसने पंख फैलाए, that means legislative councils increased in size. फिर वो मोर पंख फैलाकर एकदम गाना भी गाने लगा और आपको वो उसे देखने में बहुत मजा आ रहा है. क्यों गाना गा रहा है? बिकॉज ही गॉट इलेक्टेड इनडायरेक्टली. वो खुश था बिकॉज उसको डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ी. उसने ब्राइब दी, रिश्वत दी एंड ही गॉट इलेक्टेड. सो ही वाज वेरी हैप्पी. ही वाज सिंगिंग सॉन्ग्स एंड ही वाज डांसिंग. हेलो गाइस, प्रणाम, सत श्री अकाल. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. As you all know, UPSC is a very information loaded exam. There is no way out to learning different things like policies, articles, different types of data, committees, budget, economic survey, so many documents to be memorized, right? And also prelims are approaching just 4.5 months to go. So I'm pretty sure that you must be facing issues in memorizing and learning things even after 2 to 3 readings. Is it happening with you? Yes, I'm pretty sure about it. So I empathize with you all and I will be helping you in learning these things very quickly, effectively and for a long period of time. See, one thing I want to tell you, that those who say that UPSC is not about learning, they are either lying or they are hiding things. Because in your UPSC journey, you must have experienced it yourself, you must have observed this thing, that it requires sincere efforts in learning. For example, we have art and culture, we have ancient history, modern history, articles in politics, our polity, then budget. There are different types of terms, there are different types of data. Even in mains, we need to code them to have an impression to the examiner, right? So there is huge lot of things to be learned. So I am Purti Garg, a national memory champion, and I hold a number of titles. I have been facilitated at several places and I help people in learning and memorizing things. You will read it for once and it will be in your mind. कितना अच्छा हो जाए ना अगर ऐसा हो जाए. So let's have a fun activity for this. You can see over here how I am able to do this. Please call out the numbers for me. And yes, I call this as a 1 second. 1 second means you will just relate it in a few minutes. Thank you so much. So see, there are lots of numbers written on the screen and let me tell you, there are a lot of numbers written on the screen. Let's see if I am able to learn them. 15, 54, 29, 59, 61, 10, 16, 18, 87, 31,
4538207299 787598 and 59. Were the numbers correct? So I hope so. So now I can also recall these numbers in the reverse order. That means from here to that end. So you can check them. 95, and 51. I hope the numbers were correct. So now you must be worrying how I am able to do this. So very soon I'll also teach you this technique and you will also be able to do this with the same speed in the same manner. So it was a good party trick I guess. लेकिन आप लोग तो parties में ज़्यादा जाते नहीं हैं because आप UPSC aspirants जो ठहरे. But now you will be able to go to parties also and learn from those parties even. We'll see how. So now as you all are thinking that how I am able to learn this, if we can use these same tricks for learning our UPSC syllabus, तो कितना अच्छा हो जाए. हम बस एक बार ही पढ़ें, एक बार ही देखें और हमें याद हो जाए. Sounds very interesting. It's actually amazing because we struggle in learning things. हम बार बार चीज़ों को देखते हैं, कोशिश करते हैं, but कहीं ना कहीं we tend to forget them. After a period of time, there is a tendency to forget them. And हम वापस से फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं, thinking कि अच्छा एक बार और पढ़ लेते हैं और हमें याद हो जाएगा. So we have to struggle in learning. But let's see how we can learn them in one reading and very effectively. That means कि हम उसे ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख सकेंगे, हम उसको भूलेंगे नहीं. मतलब हमें ये जो डर है, ये जो प्रेशर है हमारे ऊपर कि कहीं हम वो ना भूल गए हों, बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम वन टॉपिक टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारे दिमाग में एक प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है. क्या हमने जो पहले पढ़ा था क्या हमें याद है? अच्छा कहीं हम भूल तो नहीं गए? अच्छा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. और ये रिवाइज पढ़ना एंड वी गेट फ्रस्ट्रेटेड. राइट, इट हैपन्स. It is a part of UPSC journey. So first of all we need to understand the science of memory for this. How I am able to do this? Because मैं और मेरा mind, we are very good friends. So we need to understand the science of memory. So what is the common way that mostly humans use for learning things, for memorizing things? There are three broad ways. One is repetition. Then the second one is any impactful event. Now, and the last one is linkage. Now, what are these three methods about? See, repetition is कि हम बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम बार बार एक ही पेज को 2-3 बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर पढ़ रहे हैं, थोड़े टाइम बाद फिर पढ़ रहे हैं, एज आई वाज जस्ट सेइंग. तो इसमें क्या हो रहा है कि आप बार बार एक ही चीज़ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो एंड इट इज़ अ विशियस साइकिल. आप एक चीज़ पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, फिर वापस पीछे आ जाते हो, फिर एक टॉपिक पढ़ते हो, फिर वापस आ जाते हो, बिकॉज वो प्रेशर रहता है कि कहीं हम भूल ना गए हो. ये जो थॉट होता है इट डजंट लेट अस प्रोसीड फर्दर. ठीक है, सो इट्स अ वेरी विशियस साइकिल एंड एट द एंड एकदम ब्लैक होल की तरह वो ब्लैक हो जाता है. राइट, एंड व्हाट इज दिस इवेंट, एनी इम्पैक्टफुल इवेंट? इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल ऑन अ पर्टिकुलर डेट आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको प्रपोज करा या आपने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करा. इट कैन बी ईदर वे. सी, इट्स वेरी मॉडर्न टाइम, सो एनीथिंग कैन हैपन. तो आपको वो चीज़ बिल्कुल डेट के साथ, टाइम के साथ याद रहती है, वो हम कभी नहीं भूलते. उसमें रिविजन की ज़रूरत नहीं होती. क्यों? बिकॉज वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल इवेंट था, हमारी लाइफ से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था. बट वॉट अबाउट स्टडीज़? बिकॉज स्टडीज़ में तो ऐसा कोई इवेंट आता ही नहीं है. बट स्टिल सम पीपल ट्राई टू लर्न विद दिस मेथड. बट उसमें क्या होता है कि हमें मेजर चीज़ तो याद रहती है, बट जो माइन्यूट डिटेल्स होती है वो हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं आफ्टर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम. राइट, एंड द थर्ड वन इज लिंकेज. लिंकेज में क्या होता है कि वी ट्राई टू लिंक द टॉपिक दैट वी नीड टू लर्न विद समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू आवरसेल्व्स.
फॉर एग्जाम्पल, या वो चीज़ें जो हमने देखी हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एलिफेंटा केव्स है तो हम उसको एलिफेंट समझ के और उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं. वाई? बिकॉज एलिफेंट हमने देखा हुआ है. बट वॉट अबाउट, देखो ये तो सबसे बेकार मेथड है, बिकॉज इन दिस मेथड यू हैव लाइक इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड यू हैव अ वेरी लेस chances to move further, क्योंकि आप बार बार वहीं आ जाते हैं ना. And these two methods are still better but not the best ones. Now what are the best methods? That I'll be telling you very soon. Before moving to them, I tell you the science behind them. One is vision, the other is imagination, and the third one is creativity. Vision, imagination and creativity. Now how these things, these three methods help us in learning. Vision क्या होता है? जो हमें दिख रहा है. And as you all must be knowing that our sense of vision is much stronger than sense of smell and sense of hearing. I hope you must be knowing about this. This is a proven scientific fact. तो जो हम देख रहे हैं वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है. अगर आप किसी बंदे से मिलते हैं तो आपको वो याद रहता है. अच्छा हाँ, अगर ऐसे ही नाम सुना तो आप भूल जाते हैं कि अच्छा इसके बारे में बात भी हुई थी. आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैपन्स. तो विजन. इमेजिनेशन इज कि आपके ड्रीम्स में, देखो आप लोग हर रोज ड्रीम्स देखते हो, ड्रीम्स में आपका जो मन चाहे आप देख सकते हो. इट्स एंटायरली अप टू यू. सो इमेजिनेशन. एंड थर्ड इज क्रिएटिविटी, बिकॉज टू इमेजिन समथिंग फ्रूटफुल यू नीड टू बी क्रिएटिव. नाउ हाउ वी कैन यूज दीज थिंग्स इन लर्निंग द सिलेबस ऑफ UPSC, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ आवर टुडेज सेशन. दैट इज द बेसिक थीम कि हम कैसे इन चीज़ों को यूज करके एक बार पढ़ें और हमें याद हो जाए, एकदम मैजिक सा हो जाए, बस मज़ा आ जाए लाइफ में. एंड फिर तो प्रीलिम्स पक्का पक्का हमारा है, राइट? So let's see how it happens. The first technique that I want to tell you regarding this is memory palace और method of loci. अब आप सबने शेरलॉक होम्स तो सुना ही होगा, एंड उसमें अगर आपने कभी देखा हो उसको, तो शेरलॉक होम्स देखे हो तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, एक मेमोरी पैलेस होता है, सॉर्ट ऑफ एक ह्यूज पैलेस है, एंड वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्लेस करता है. एंड वो पैलेस उसके लिए क्या होता है? इट्स हिज ब्रेन. बट यहाँ पर हमने क्या करा है, सिमिलरली memory palace, that means how we can use any palace in learning things, to memorize things. तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? आर ड्राइंग रूम, आर बेडरूम. हम अपना खुद का मेमोरी पैलेस बना सकते हैं ना, जैसे हमारे घर का ड्राइंग रूम, हमारे घर का बेडरूम, आर बाथरूम, आर गार्डन, एनीथिंग. इट्स एंटायरली अप टू अस. तो मेरा मेमोरी पैलेस यहाँ पर ये रूम है. नाउ इन दिस रूम यू कैन सी लॉट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक ग्रे कलर्ड सोफा, रेड कलर्ड सोफा, bookshelf, lights, television, tree, etc. etc. There are a lot number of things in this room. Now how we can use this room in learning? अब देखो बेस्ट पार्ट, जैसे मैंने बोला था विजन, तो हम सब अपना कमरा तो देख सकते हैं ना, हमारा बेडरूम जहाँ हम रोज सोते हैं, हमारा ड्राइंग रूम जो हम रोज जाते हैं, तो वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे ना. अब उससे हम वो चीज़ें कैसे याद करें जो हम भूल जाते हैं? लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. पहले हम एक सिंपल चीज़ याद करेंगे, फिर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ याद करेंगे रिलेटेड टू आवर UPSC सिलेबस. पहले हम लर्न करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नोलन प्रिंसिपल्स. ही गेव 7 क्वालिटीज, बट यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे, बिकॉज हर जगह तो हम नोलन प्रिंसिपल्स नहीं लिखेंगे ना, हर जगह हम एक ही कीवर्ड तो नहीं यूज करेंगे. सो लेट्स लर्न 15 ऑफ देम. द फर्स्ट वन इज ओपननेस. नाउ जस्ट इमेजिन, आपको याद करने की कोशिश ही नहीं करनी, जस्ट इमेजिन अलॉन्ग विद मी. फॉर एग्जाम्पल, यू एंटर दिस रूम. आप बाद में इसको अपने रूम से रिलेट कर लीजिएगा. Now as you will enter this room, आपने देखा first is openness. तो आपने यहाँ पर देखा कि oh this room is very spacious, बहुत open है, तो that means openness. तो first हमारा क्या हो गया? As soon as you will enter this room, आपको याद आ जाएगा openness, क्योंकि बहुत spacious है. Second is objectivity. अब जैसे ही आपने एंटर करा तो आपने देखा कि इतने बड़े रूम में, इतने ओपन रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं. सो ऑब्जेक्टिविटी. सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट से याद आया हमें ऑब्जेक्टिविटी. थर्ड इज सेल्फलेसनेस. अब हम एक एक चीज से ऐसे इन अ साइकिल वी विल मूव फर्दर. तो हम यहाँ से गए, हमने देखा ओ ट्री है. ट्री क्या करता है? हमें सेल्फलेसली प्योर एयर देता है, ऑक्सीजन देता है. सो ट्री को देखकर हमें क्या याद आएगा? सेल्फलेस इसकी नेचर, जो ये हमें ऑक्सीजन देता है, एंड उससे सेल्फलेसनेस. देन फोर्थ इज ऑनेस्टी. ऑनेस्टी में कैन यू सी दिस नेस्ट? तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर बर्ड्स ने अपना नेस्ट बनाया हुआ है. सो दिस इज ऑनेस्टी. नाउ इट्स विजन. विजन, अब यहाँ पर आपको ये लाइट दिख रही है, लाइट से हम क्या हेल्प करती है लाइट हमें देखने में. सो विजन. तो जब आप लाइट देखोगे तो आपको विजन याद आएगा. देन इज इनोवेशन. अब ये टीवी. टीवी इज
एन इनोवेशन, टीवी क्या है, एक इनोवेशन है ना, सो टीवी से हमें याद आएगा इनोवेशन। देन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट्स एक सब्जेक्ट होता है, तो बुक शेल्फ को देख के हमें याद आएगा कि ओ इस बुक शेल्फ में हमने कौन सी बुक्स रखी हुई है, अकाउंट्स की, सो अकाउंटेबिलिटी। देन बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस, तो हमें ये सीढ़ी दिख रही है, हम जब इस पे चढ़ेंगे कुछ ऊपर से बुक्स निकालने के लिए, तो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, सो सीढ़ी देखकर हमें याद आएगा बैलेंस से क्या याद आएगा, बैलेंस ऑफ माइंड। देन इज ग्रैटिट्यूड, जस्ट इमेजिन, अब विजन के साथ साथ वी आर यूजिंग दैट सेकेंड वे, इमेजिनेशन। तो ये ग्रे कलर का सोफा है हमारे रूम में, जस्ट इमेजिन कि एक बंदा ग्रे कलर के सोफे पे हाथ जोड़ के बैठा है विद ग्रैटिट्यूड, सो सोफा देख के बंदा याद आएगा हाथ जोड़ा हुआ, और उससे हमें क्या याद आएगा, ग्रैटिट्यूड। देन इज डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का हम डिसाइपल बना सकते हैं, सो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर फ्लोर पर कारपेट पर बहुत सारे डिसाइपल्स बैठे हैं, बिठा देते हैं, इट्स आवर इमेजिनेशन, तो हमने बिठा दिए, तो इट इज डिसिप्लिन। देन इज इंटेग्रिटी, ग्रीन टी, ठीक है, सो जस्ट इमेजिन दैट ऑन दिस टेबल यू हैव अ कप एंड इसमें क्या रखी है, ग्रीन टी, सो टेबल देख के आपको ग्रीन टी याद आएगी, और ग्रीन टी से क्या याद आएगा, इंटेग्रिटी। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पॉन से स्पून्स, अलॉन्ग विद ग्रीन टी यहाँ पर बहुत सारी स्पून्स रखी हुई है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन लीडरशिप, अब ये जो सिंगल अलग से डिफरेंट सी चेयर रखी है बहुत ही, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, लीडर, सो इस चेयर को देख के हमें क्या याद आएगा, लीडर से लीडरशिप। एंड करेज से हमें क्या देखा, अब हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमने देखा रेड कलर से क्या याद आता है, करेज। एंड फाइनली ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे ये लैंप है, लैंप देखकर हमें क्या याद आएगा, ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज लाइट क्या है, ट्रांसपेरेंट, सो लैंप से याद आएगा हमें ट्रांसपेरेंसी। नाउ आई होप आपने याद करने की कोशिश भी नहीं करी होगी, बट आपको याद हो गया होगा। लेट्स चेक इफ यू आर एबल टू लर्न दिस। नाउ दिस वाज द रूम, लेट्स सी, फर्स्ट क्या था, जैसे ही आप रूम में एंटर हुए आपने क्या देखा, ओह बहुत ओपन रूम है, सो फर्स्ट वाज ओपननेस। देन सेकंड, जैसे ही आप आगे बढ़े रूम में तो आपने देखा ओ इसमें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, सो ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद आप ऐसे आगे बढ़ना चालू है, आपने देखा ट्री हमें सेल्फलेसली ऑक्सीजन देता है, सो सेल्फलेसनेस। फिर हमने यहाँ देखा ओ यहाँ पे तो हमने नेस्ट देखा था, बहुत सारी चिड़ियाँ थी, अंडे थे, तो क्या था, नेस्ट से ऑनेस्टी। इट इज जस्ट गोइंग इन आवर इमेजिनेशन, व्हाट वी हैव डन इज, जो हमें याद करना है, वी हैव जस्ट प्लेस्ड इट इन आवर पैलेस, मेमोरी पैलेस, ठीक है। अब जैसे ही आप अपना रूम देखेंगे, जो भी आप इमेजिन करेंगे, योर ड्राइंग रूम, योर बेडरूम, आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको खुद ब खुद याद आएगा, ओ अच्छा ये तो मैंने ऐसे से याद करा था, तो बिना बुक्स के आपको रिवाइज हो जाएगा। मतलब एज सून एज यू विल एंटर योर ड्राइंग रूम, एकदम से आपको याद आएगा, अच्छा यहाँ तो मैंने ये रखा था, दैट मीन्स क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, और आपके बिना रिवाइज करे चीजें रिवाइज हो जाएंगी। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेक्निक, बिकॉज व्हाट हैपेंस यूजुअली कि हम लोग रिवीजन कर ही नहीं पाते, एंड रिवीजन इज द की टू दिस एग्जाम, अपार्ट फ्रॉम मेमोरी। देखो अगर हमने मेमोराइज नहीं करा तो रिवीजन का सेंस नहीं बनता, बट वंस वी हैव मेमोराइज्ड देम, इफ वी विल नॉट रिवाइज, तो एक पीरियड के बाद तो हम धीरे धीरे भूलने लगेंगे। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेक्निक इज कि आपको बुक्स की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, रात को पढ़ते पढ़ते इतना थक जाते हैं दैट हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम रिवाइज करें, बट विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स यू कैन जस्ट पीसफुली लाई डाउन एंड इमेजिन द रूम एंड जस्ट खट बिना बुक्स के आप उसे रिवाइज कर सकते हैं विद इन मिनट्स। ओके, सो और द नेक्स्ट वन आफ्टर ऑनेस्टी, हमने क्या देखा था, लाइट से हमें क्या आया था, विजन, बिकॉज हम सब चीजें देख पा रहे थे। देन टीवी वॉज एन इनोवेशन, सो इनोवेशन। देन बुक शेल्फ में कौन सी बुक्स थी, अकाउंट्स की, सो अकाउंटेबिलिटी। फिर सीढ़ी थी, हम जब चढ़ेंगे बुक्स लेने तो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, सो बैलेंस ऑफ माइंड। उसके बाद ये ग्रे कलर का सोफा था, इस पे एक बंदा हाथ जोड़ के बैठा था विद ग्रैटिट्यूड, सो ग्रैटिट्यूड। उसके बाद हमने यहाँ पे कारपेट पे देखा था बहुत सारे डिसाइपल्स बैठे थे, सो डिसिप्लिन। फिर यहाँ पर हमने टेबल पे क्या देखा था, ग्रीन टी का मग, सो इंटेग्रिटी। देन उसके बराबर में स्पून्स रखी थी, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ये स्पेशल सी चेयर किसकी थी, लीडर की, सो लीडरशिप। देन वी मूव हेयर, वी हैव दिस रेड कलर सोफा, सो रेड कलर से हमें करेज याद आया, एंड फाइनली लैम्प से हमें ट्रांसपेरेंसी याद आया। वाओ अमेजिंग, आप लोगों को भी आई होप एक बार पढ़ के याद हो गया होगा, अदरवाइज हम ये 15 बार बार पढ़ते हैं और फिर भी हम, एंड सी ऑब्जर्व वन थिंग, हमने जिस ऑर्डर में याद करा था हमको उसी ऑर्डर में याद है। कैन यू ऑब्जर्व दिस थिंग, सेम ऑर्डर में हमने याद करा था ना,
हम लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती और यहाँ पे हमें ऑर्डर तक याद हो रहा है. अमेजिंग. सो प्लीज प्रैक्टिस दिस थिंग एंड आई हैव अ नंबर ऑफ टेक्निक्स ऑफ दिस टाइप. सी आई विल शो यू अनदर टेक्निक. बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक आई विल लाइक टू टेल वन थिंग कि आप लोग राइटिंग पे फोकस मत करिए. डू नॉट फोकस ऑन राइटिंग और मेकिंग नोट्स बिकॉज the link for the PDF is given in the description below. You can download the PDF from there. So my advice to you will be, my suggestion will to you will be that do not focus on writing, focus on understanding, focus on imagining as I am saying, because उससे आप relate कर पाएंगे. Okay, क्योंकि PDF is freely downloadable. You can download it from the link below. Now the second technique that we learn today is journey method. अब जर्नी से क्या मतलब है? ट्रैवल. आप लोग कहीं जाते तो आप क्या करते हैं? जर्नी. तो जर्नी मेथड को हम यूज कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन यूज दिस मेथड इन मेमोराइजिंग द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. आप रोड पे जाते हैं, आप लोगों के फिक्स रूट्स होते हैं. अगर आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, अपने घर से दूध लेने जा रहे हैं, अपने घर से क्लास तक जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट तक जा रहे हैं, तो आप एक रास्ते से जाते हैं. उस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. यू ऑब्जर्व अ नंबर ऑफ थिंग्स. लाइक for example, I can give you an example over here. See, this is my journey. I'll show you my journey before moving ahead. This is my journey. For example, if I go from home to office, I come across these many things: factory, scrap yard, hand pump, fruits wale ki shop, bag wale ki shop, vaccine booth, petrol pump, bank. See, these are very common things. हम जिस भी रास्ते से जाते हैं, हमें होटल, मैकडी, बुक शॉप, बैग शॉप, ये सब एक कॉमन चीज़ें दैट वी ऑब्जर्व. नाउ हाउ वी कैन यूज देम टू लर्न आवर सिलेबस. साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो टुडे आई विल बी हेल्पिंग यू इन लर्निंग यूनियन बजट, विच इज द नीड ऑफ द आवर नाउ. सो वी विल बी लर्निंग यूनियन बजट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, जर्नी मेथड. अब बिफोर यूजिंग दिस टेक्निक, अगर कोई आपसे बोले कि ठीक है ये बजट है, पेजेस पे पेजेस हैं, कैन यू लर्न देम इन 2 days ऑल्सो, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, आई ट्राई कंप्लीटिंग इन दीज 2 days. आप पढ़ते रात, सुबह से रात हो गई, रात से सुबह हो गई. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपसे शाम को पूछे, अच्छा कैन यू टेल मी फ्यू पॉइंट्स, तो अगर आपने 25 पॉइंट पढ़े हैं तो आप 6, 7, 8 एट द मैक्स 10 बता पाएंगे, नॉट मोर देन दैट. बट लेट्स सी हाउ वी कैन लर्न दिस बजट इन जस्ट 1 reading. You can download this, okay, as I told you, you can download this from the link below, so no need to spend time on this right now. Now this is the journey method. Okay, this is the journey. So अब ये मेरी जर्नी है. You can relate this to your journey. मतलब जब मैं when I am going from my home to my office, I come across these things. So let's try learning with this as a common example. So first thing, जैसे ही मैं घर से चली, I saw a vaccine booth under tree. तो वैक्सीन बूथ से मुझे क्या याद आया? वैक्सीन से मुझे याद आया 2 तरह की वैक्सीन बजट में अनाउंस हुई हैं, कोविड-19 वैक्सीन एंड नीमोकोकल वैक्सीन. अब मैं कैसे याद रख सकती हूँ? बिकॉज वैक्सीन बूथ कहाँ है? अंडर अ ट्री. ट्री से मैं नीम का ट्री मान सकती हूँ एंड नीम के ट्री से क्या याद आएगा? नीमोकोकल वैक्सीन. एंड कोविड-19 तो अब न्यूज़ में 1 साल से है, तो आप सबको याद होगा कि कोविड-19 वैक्सीन तो है ही है, राइट. देन सेकेंड इज बैग शॉप. अब बैग शॉप से हम कैसे याद करेंगे? बैग में क्या रखा? आपने बहुत सारा सामान लिया, आप एक बैग शॉप पे गए, आपने उससे बैग खरीदा. बैग क्यों खरीदा? ताकि आप अपनी ज़रूरत की मेडिसिन बैग में रख सकें. तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना. स्वस्थ मतलब आपने बैग में मेडिसिन रखी कि अगर आप कहीं पे थोड़ा लो फील करें, यू कैन टेक योर मेडिसिन. आत्मनिर्भर क्योंकि आपने अपनी मेडिसिन अपने साथ लेके चल रहे हैं उस बैग में. तो बैग शॉप को देख के आपको याद आएगा, अच्छा आपने बैग खरीदा तो मेडिसिन डाली थी. सो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना. देन उसके बाद हम और आगे चले अपने रास्ते में, तो हमने क्या देखा? हमने देखा फ्रूट्स वाले की शॉप है. फ्रूट से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन. तो हमें क्या याद आएगा फ्रूट्स वाले को देखकर? हमको याद आएगा मिशन पोषण. पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन. तो हमें फ्रूट से क्या मिलता है? न्यूट्रिशन. सो जैसे हम फ्रूट्स वाले की शॉप देखेंगे हमें याद आएगा मिशन पोषण. देन हम और आगे चले अपनी जर्नी में, तो हमने देखा कि हैंडपंप आया. अब हैंडपंप से क्या होता है? लोग पानी पीते हैं, जल पीते हैं. सो हैंडपंप से आया जल जीवन मिशन. सॉरी, द स्लाइड इज नॉट हेयर, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट फ्रॉम हेयर. हैंडपंप आया, हैंडपंप से क्या देखा हमने? जल जीवन मिशन. हैंडपंप से लोग पानी पीते हैं, जल मिलता है, सो जल जीवन मिशन. आई कैन राइट इट फॉर यू. देन हम उसके आगे गए तो हमने क्या देखा? एक होटल देखा.
होटल में हमने क्या देखा कि उसके बाहर एक बंदा झाड़ू लगा रहा है, बहुत सफाई मेंटेन कर रखी है। वाई? बिकॉज स्वस्थ भारत मिशन। तो हम सी जस्ट इमेजिन दीज शॉप्स, वैक्सीन बूथ अंडर अ ट्री, उसके बाद बैग वाले की शॉप, फिर फ्रूट्स वाले की शॉप, फिर हैंड पंप, फिर आपने आगे देखा होटल। होटल में क्या था? बंदा झाड़ू लगा रहा है, सो स्वस्थ भारत मिशन। फिर आप और आगे चले तो आपने क्या देखा? ओ एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है एंड गार्डन में बहुत सारे ट्रीज हैं। एज वी जस्ट डिस्कस, ट्रीज से क्या होता है? हमें ऑक्सीजन मिलती है, सो दे हेल्प इन टैकलिंग एयर पोल्यूशन। तो गार्डन में ट्रीज देख के क्या याद आएगा? गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर्स टू टैकल एयर पोल्यूशन। सी हमें सिर्फ कीवर्ड्स याद करने, वी आर फोकसिंग ऑन रिमेंबरिंग द कीवर्ड्स, बिकॉज इफ वी आर थोरो विद द कीवर्ड्स then we can definitely write sentences in mains and we can also we can also mark the options in our prelims, because there is no tendency to get confused. either हमको आता होगा या हमें नहीं आता होगा, वो जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो हमारी कम हो जाएगी। बिकॉज अगर हम ऐसे याद करें, वी आर लर्निंग विद दीज मेथड्स, सो वो चीज़ जो हमने याद करी वो हमें आती ही है ना, वो हम भूले नहीं है। उससे क्या होगा कि when we are confused between two options, when two options are very close to each other, we can definitely remember कि अच्छा क्या हमने ये पढ़ा था, नहीं पढ़ा, मतलब ये गलत है, हमने इसकी जगह क्या पढ़ा था। यू कैन इवन मेक आउट दिस। ओके, देन गार्डन विद ट्रीज के हम आगे चले तो हमने क्या देखा? एक गली जा रही है और गली में क्या है? स्क्रैप यार्ड, कबाड़ी वाले की दुकान है, सॉर्ट ऑफ, यू कैन इमेजिन। तो स्क्रैप यार्ड, स्क्रैप यार्ड से आपको क्या याद आएगा? वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। जस्ट अ हिंट, स्क्रैप यार्ड आपको देखो खुद ब खुद याद आएगा, ओ स्क्रैपिंग पॉलिसी भी तो थी। देन हम और आगे चले, उसके बाद हमने देखा कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से हमें क्या याद आएगा? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बाय गवर्नमेंट। फिर हम और आगे चले, एज वी मूव फॉरवर्ड देन वी सॉ अ मैन हु इज डाइंग क्लोथ्स। वो कलर्स नहीं कराते, अच्छा भैया मेरी ब्लू चुन्नी को रेड कर दो, अच्छा भैया मेरी वाइट जीन्स को ब्लैक बना दो, ठीक है। सो देर इज अ मैन, मतलब देर इज अ शॉप वेयर यू कैन सी अ मैन डाइंग क्लोथ्स। तो इससे हमें क्या याद आएगा? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, हमें टेक्सटाइल याद आएगा, और टेक्सटाइल से फिर हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ी शॉप है, सो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम। देन वी कंटिन्यू आवर जर्नी, एज वी मूव फॉरवर्ड देन वी सॉ अ पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल में क्या होता है? पेट्रोल कैसे आता है पेट्रोल पंप में? थ्रू अ पाइपलाइन। तो उससे हमें पाइपलाइन से क्या याद आएगा? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। पेट्रोल पंप में आप देखते हैं ना, पेट्रोल जैसे वो आपके व्हीकल में डालने आता है तो एक बहुत बड़ा पाइप सा होता है, सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। देन वी मूव फॉरवर्ड, उसके बाद हमने देखा कि अच्छा हमारे रास्ते में एक बैंक आया है, सो बैंक से क्या याद आएगा? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, सो बैंक देखकर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देन वी मूव अहेड फर्दर, फिर हमने देखा एक बहुत सुंदर सा एक्सप्रेसवे आया, सो एक्सप्रेसवे को क्या याद आएगा हमें? कि द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू expand the expressways, so economic corridors and expressways, just the keywords, and sentence framing you can very well do it, right? Then we move forward, then we come across a traffic light. Traffic light, why we use traffic lights? We use traffic lights to manage the system, so advanced traffic management system, right? देन फर्दर यू सॉ रेलवे क्रॉसिंग, आप आगे बढ़े, आपको रोक दिया गया, क्यों रोका गया? क्योंकि वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग थी, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। सो रेलवे क्रॉसिंग से आप क्या याद कर सकते हैं? नेशनल रेल प्लान, रेलवे क्रॉसिंग से रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। देन आपने पटरियाँ देखी, जब रेलवे क्रॉसिंग पे आप पटरियाँ देखेंगे, सो पटरियों से आपको क्या याद आया? ब्रॉड गेज, सो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गेज रूट। उसके बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एंड देन आपने देखा कि जब रेलवे क्रॉसिंग के बाद रेल आगे गई, रेलवे स्टेशन पहुंची, तो जो आपका रेलवे स्टेशन है वो ऐसे डोम की तरह है, तो डोम देखकर आपको क्या याद आएगा? विस्ता डोम लिंक के हॉफमैन बुश कोच। बस ये डोम से विस्ता डोम लिंक याद आया तो आप नाम लिख लोगे, बिकॉज उसके बाद ये आपका पार्क है, सॉरी ये आपका रेलवे स्टेशन है, जस्ट एडजेसेंट टू रेलवे स्टेशन देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क जहाँ पे लोग जॉगिंग कर रहे हैं। जॉगिंग करते हुए क्या होता है? हाँ फ्रेंड, ऐसा होता है ना, सो लोग हाँफ रहे हैं, सो हॉफमैन, सो विस्तर डोम लिंक के हॉफमैन बुश। देन एज वी मूव फॉरवर्ड, द लास्ट लैंडमार्क दैट वी कम अक्रॉस इज मेट्रो स्टेशन। अब मेट्रो स्टेशन पे आपने देखा एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट, वहाँ पे आपने देखा दैट देयर इज अ नियॉन बोर्ड, मेट्रो स्टेशन विद अ नियॉन बोर्ड। तो नियॉन बोर्ड से आपको क्या याद आएगा? मेट्रो नियो, सो मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज,
ठीक है, मेट्रो स्टेशन पे बहुत सुंदर सुंदर सी लाइट्स हैं, अच्छा सा लेट अप है, एंड देयर आर नियॉन बोर्ड, सो मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज। आई होप कि अब नाउ यू कैन रिलेट देम, जैसे जैसे आप ये चीजें देखेंगे आपको याद आता जाएगा। लेट्स चेक इफ यू आर एबल टू लर्न दिस। फर्स्ट इज वैक्सीन बूथ अंडर अ ट्री, वैक्सीन बूथ और पेड़ के नीचे, पेड़ किसका था, नीम का, सो देयर वर 2 वैक्सीन्स, नीमोकोकल वैक्सीन एंड कोविड-19 वैक्सीन। बैग शॉप, बैग में आपने बैग खरीदा था, मेडिसिन डाली थी, सो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। उसके बाद आप आगे गए, आपने फ्रूट शॉप देखा, सो फ्रूट्स न्यूट्रिशन मिशन पोषण। देन हैंडपंप, हैंडपंप से पीपल वर ड्रिंकिंग वाटर, सो जल जीवन मिशन। देन होटल, होटल के बाहर अ पर्सन वाज स्वीपिंग, सो स्वच्छ भारत मिशन। देन गार्डन विद ट्रीज, तो ट्रीज से ऑक्सीजन, सो टैकल एयर पोल्यूशन। स्क्रैप यार्ड, स्क्रैप यार्ड में क्या होता है, स्क्रैपिंग पॉलिसी, मतलब कबाड़ी वगैरह वो चीजें तोड़ फोड़ रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, नया बन रहा है, सो स्क्रैप यार्ड से वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। फैक्ट्री, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा था, सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मैन डाइंग, अब मैन डाई कर रहा था तो क्या था, टेक्सटाइल पार्क, सो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम। पेट्रोल पंप, पेट्रोल कैसे जा रहा था, पाइप के थ्रू, सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। बैंक, बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक्सप्रेस वे, बहुत सुंदर सा, सो क्या है, न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एंड एक्सप्रेस वेज आर बीइंग प्लान्ड। ट्रैफिक लाइट क्या होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सो एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग से पहले तो रेल प्लान फॉर 2030, देन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, बहुत सुंदर सा हो रहा है, ब्रॉड गेज रूट का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। एंड उसके बाद क्या था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। देन रेलवे स्टेशन एंड जॉगिंग पार्क, रेलवे स्टेशन उसमें डोम था, सो विस्ता डोम, एंड बराबर में जो जॉगिंग पार्क था, लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे और सांस तेज तेज ले रहे थे, हाफ रहे थे, सो विस्ता डोम लेके हॉफमैन बुश कोच। एंड फाइनली हम मेट्रो स्टेशन पहुंचे थे, सो मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज। अमेजिंग, देखो आपने एक बार पढ़ा, वंडरफुल, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, आपने एक बार पढ़ा और आपको सब कुछ याद हो गया, बजट याद हो गया, देखो बैठे बैठे, कितना अच्छा हुआ ना। एंड आई हैव न्यूमरस टेक्निक्स ऑफ दिस टाइप, you will be coming across them, few of them in this session. Now the next one that I'll be telling you is chain method. As the name suggests, chain, chain में क्या होगा कि हम एक तरह से chain ही बनाएंगे, मतलब we will link the objects that we want to learn, we will link the topics that we want to learn, we will link the points that we want to learn। ठीक है, कैसे करते हैं ये आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एजुकेशन कमीशंस एंड फमीन कमीशंस। देखो ये नॉर्मली होता है प्रीलिम्स में, देयर इज अ क्वेश्चन, समटाइम्स यू कैन हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, एंड कभी कभी होता है कि देयर इज इट आस्क यू टू मैच द कॉलम, या इट आस्क यू कि ठीक है 5 ऑप्शंस दे दिए, 5-6 ऑप्शंस, एंड दे विल आस्क यू आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजुकेशन कमीशंस, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेंसी एजुकेशन करेंसी कमीशंस। एजुकेशन कमीशन तो हमें फिर भी याद होते हैं, बट देन वी टेंड टू कंफ्यूज इन फमीन कमीशन, करेंसी कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The second question that can be formed from here is कि okay, education commissions are given to you, arrange them in order. So हमें पहली बात तो ये याद नहीं रहता कि कौन सा कमीशन किसके लिए था, ऑर्डर तो भूल ही जाओ, बट सी हम कैसे एक बार पढ़ेंगे और हमें ऑर्डर याद हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ चेन मेथड। लेट्स ट्राई। सी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन, आप पढ़ाई कर रहे थे, आप पढ़ाई करते करते यू फील बोर्ड, सो यू थॉट ऑफ गोइंग फॉर अ बॉनफायर पार्टी। अब बॉनफायर पार्टी के लिए क्या चाहिए, लकड़ी, सो वुड। एजुकेशन, आप सी एजुकेशन कमीशन, आप एजुकेशन पढ़ते पढ़ते थक गए, सो आपने सोचा बॉनफायर पार्टी, बॉनफायर पार्टी से आपको क्या याद आया, वुड, कि अरे बॉनफायर के लिए तो हमें वुड चाहिए, सो लेट्स गो एंड ब्रिंग द वुड। वुड के लिए आप क्या गए, आप हंट करने गए, आपने सोचा क्यों हंट करने गए, बिकॉज आप वुड लेने कहाँ गए, जंगलों में। जस्ट इमेजिन, देखो इमेजिनेशन में वी कैन इमेजिन एनीथिंग, सो लेट्स इमेजिन समथिंग इंटरेस्टिंग। सो जस्ट इमेजिन कि यू आर गोइंग फॉर कलेक्शन ऑफ वुड इन द जंगल, और जंगल में वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, सो यू आर हंटिंग द एनिमल्स। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सोचने में, तो सोच लेते हैं। सो यू आर हंटिंग ओवर देयर, सो वुड के बाद आया हंटर कमीशन, बिकॉज आपको वहाँ पे एनिमल्स को हंट करना पड़ा फॉर योर प्रोटेक्शन। अब आप हंट करते करते कहाँ पहुंचे, एक लेक के पास, एक बहुत सुंदर सा लेक है, सो राले, ले से क्या आया, लेक, सो राले कमीशन। आपने लेक देखा, लेक से आया राले कमीशन। देन यू थॉट ओके इट्स सच अ ब्यूटीफुल लेक, लेट मी सिट डाउन हियर फॉर सम टाइम, सो sit down here. Why? Because you were sad. It is a beautiful lake, but you got sad because you were not able to collect wood. आप लेक तक पहुंचे, आपने देखा वाह कितना सुंदर सा लेक है,
लेट मी सिट हियर फॉर सम टाइम। लेकिन जब आप लेक पर वहाँ बैठे थे, while you were sitting, you felt very sad. Why you felt sad? Because आपने अभी तक वुड तो कलेक्ट की नहीं थी। बॉनफायर पार्टी का क्या होगा, आपके फ्रेंड्स तो आ रहे हैं, राइट? सो यू फेल्ट सैड। देन हार्ट टॉक। इतने में भगवान जी ने सोचा, ओह ये बच्चा बहुत सैड है, लेट मी मेक हिम हैप्पी। तो क्या हुआ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सुंदर सी लड़की आई। सो हार्ट बीट स्टार्ट हुई। सो हार्ट बीट से क्या आया, हार्ट टॉक। डोंट स्माइल, आई नो मेनी ऑफ यू आर लाफिंग, राइट? ओके, लेट्स लाफ, लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सो हार्ट टॉक। देन द लास्ट वन इज सार्जेंट प्लान। सार्जेंट से कैसे याद हुआ, सी हार्ट टॉक, then you went near her, you went near that girl and you asked what's your name, she said Sarah, my name is Sarah. So Sarah, sergeant plan. I hope आपको एक बारे में पढ़ते याद हो गया होगा। अब आप एक ऑर्डर में भी बोल सकते हैं, बिकॉज सी दिस चेन इज इन अ ऑर्डर, ठीक है, इट्स इन एन ऑर्डर। लाइक एजुकेशन, एजुकेशन से बॉनफायर, बॉनफायर से आपको वुड चाहिए थी, सो चार्ल्स वुड डिस्पैच। देन आपको वहाँ पे एनिमल्स को फेस करना पड़ा, सो यू हंटेड देम, सो हंटर कमीशन। देन देयर वाज अ ब्यूटीफुल लेक, राले कमीशन। Then you sat down there, but you were feeling sad, so Sadler Commission. Then a beautiful girl arrived there, so heart talk, because your heart started beating seeing her. And finally, you asked her name and she said Sarah, so Sergeant. So see how beautifully we have just learned in one go and in the order. Order is very important because there can be a question in prelims. Now let's learn famine commissions also. Famine, famine से क्या हुआ, सूखा पड़ गया। सो एकदम से एक सिग्नल पास हुआ पूरे विलेज में कि ठीक है गांव वालों, एक ऐलान होता है कि बाढ़, वो सूखा पड़ गया है। सो एक बेल सिग्नल, एक बेल बजी। सो कैंप बेल, पहले क्या आया, कैंप बेल। आफ्टर कैंप बेल इट इज ट्राचे कमीशन। आफ्टर कैंप बेल इट इज ट्राचे, क्योंकि जैसे बेल बजी आप सब अपने अपने घरों से बाहर निकले और आपने देखा एक खूब बड़े स्ट्रेच पर, एट अ स्ट्रेच मतलब बहुत बड़ा स्ट्रेच है, एंड वहां पर आपने देखा ये बहुत बड़ा सा एक वो है स्ट्रेच है, एंड यहाँ पर क्या है, फमीन है, सूखा पड़ा है। सो स्ट्रैचे कमीशन। देन लाल कमीशन। सो आपने देखा कि यहाँ पे कलर क्या हो गया है, लाल, सूखे से मिट्टी कैसी हो गई है, लाल, लाल इज लाल कमीशन। ओके, देन आफ्टर लाल कमीशन इट इज मैकडोनल्ड। आपने सोचा यार बहुत टेंशन हो गई, अब मुझे भूख लग रही है, लेट मी गो टू मैकडी एंड हैव सम बर्गर। सो देन केम मैकडी, मैकडोनल्ड कमीशन। सो आपको एक ही बार पढ़ते हुए ऑर्डर में याद हुआ होगा, फमीन, सिग्नल, सो कैम्पबेल, बेल बजी, बेल से आपने बाहर देखा बहुत बड़े स्ट्रेच पर सूखा पड़ा, सो स्ट्रैचे कमीशन। देन आपने देखा मिट्टी कैसी होगी, लाल, सो लाल कमीशन। एंड फाइनली आपने सोचा यार बहुत हुआ, लेट मी गो एंड हैव बर्गर फर्स्ट, सो यू वेंट टू मैकडी, सो मैकडोनल्ड कमीशन। सो कैन यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिक? द ब्यूटी इज कि आपको एक बार एक सुंदर सी चेन इमेजिन करनी है एंड आपको ऑर्डर में याद हो रही है चीजें, एंड यू कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश। अगर मैं एकदम से बोलूँ कि ओके स्ट्रैचे कमीशन किसके लिए था, तो अच्छा स्ट्रैचे से स्ट्रेच, स्ट्रेच में क्या हुआ था, बाढ़ आई थी, सो इट इज अ फमीन कमीशन। अगर क्वेश्चन में करेंसी होगा तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, एट अ सेकंड, विद इन अ सेकंड आप उसको क्रॉस कर दोगे, यू कैन एलिमिनेट दैट ऑप्शन। सो इन दिस वे वी विल रिड्यूस आवर नेगेटिव मार्किंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज ट्रिक्स। याद भी होगा, लंबे समय के लिए होगा, एंड रिविजन एंड नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स ट्राई टू लर्न मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स थ्रू चेन मेथड। नाउ आप सबने मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 तो पढ़ी होगी, इन मॉडर्न हिस्ट्री, इन पॉलिटी ऑल्सो एज वेल, सो इन पॉलिटी एज वेल। नाउ हाउ वी विल लर्न मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स थ्रू दिस मेथड? बिफोर दैट कैन यू इमेजिन कि आपको एक बार ही पढ़े और मॉर्ले-मिंटो याद हो जाए? हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से एक एक्ट पढ़ते हैं, एज सून एज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट हम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो हम पहले रेफर करते हैं, अच्छा मॉर्ले-मिंटो में ये था, 1919 में ये है, 1935 आया, 1947 आया, उसके पहले 85 पढ़ा था, 1861 पढ़ा था, और एट द एंड एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप। हम बार बार पढ़ते हैं, वही रेपिटेशन, बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूलते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूलते हैं, एंड देन इन एग्जाम एन ऑप्शन इज देयर एंड वी सी, ओह ये तो हमने पढ़ा नहीं, कुछ नया सा ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर ने। इट हैपेंस, मतलब दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स दैट ईच वन ऑफ अस फेसेस, राइट? सो how we can learn these Morley-Minto reforms in one go? Let's see with the help of chain method. See, Morley, more से हमने क्या imagine करा, peacock. More is क्या, more होता है peacock. So more से हमने imagine करा peacock. So Morley का हमने क्या symbol बनाया, more, peacock. Now this peacock, as you were seeing this peacock, it suddenly opens its feathers. Feathers क्या हो गए, increased in size. That means the legislative councils increased in size. Then next is
जैसे ही इसने पंख फैलाए, it started to sing a song. Why? Because he was very happy. Why he was happy? Because he got elected indirectly. He was happy. He was singing song. Just imagine, एक मोर है, उसके बाद उसने पंख फैलाए, that means legislative councils increased in size. फिर वो मोर पंख फैलाकर एकदम गाना भी गाने लगा और आपको वो उसे देखने में बहुत मजा आ रहा है. क्यों गाना गा रहा है? बिकॉज ही गॉट इलेक्टेड इनडायरेक्टली. वो खुश था बिकॉज उसको डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ी. उसने ब्राइब दी, रिश्वत दी एंड ही गॉट इलेक्टेड. सो ही वॉज वेरी हैप्पी. ही वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स एंड ही वॉज डांसिंग. सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली. देन आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड इनडायरेक्टली he started to dance also. पहले गाना गाया, फिर he started to dance also. Why? Because he doesn't have the tension to go to office. उसने सोचा यार अब तो मैं indirectly elect हुआ हूँ, पैसे मैं दे चुका हूँ, मुझे पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल मीटिंग के लिए कहीं जाना नहीं, ऑफिस नहीं जाना. सो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. ओके, इससे क्या याद आएगा? नॉन ऑफिशियल मेंबर. नॉन ऑफिशियल से याद आएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर इन मेजॉरिटी. राइट. देन मूविंग फॉरवर्ड, जब ये मोर डांस कर रहा था तो डांस करते करते खुशी में इसने सोचा कि अब मुझे ऑफिस तो जाना नहीं है. तो उससे हमें क्या याद है? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर इन मेजॉरिटी. नाउ ही थॉट इफ आई डोंट हैव टू गो टू ऑफिस, लेट मी कॉल माय फ्रेंड्स एंड गो टू अ बार. क्यों ना पार्टी कर ली जाए. मॉडर्न मोर है ये. सो ही वेंट टू अ बार विद हिज फ्रेंड्स. सो कैन यू सी, सो मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, इनवाइटेड सो मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड ही वेंट टू अ बार. तो फ्रेंड्स से क्या याद आएगा? अब जब फ्रेंड्स मिलेंगे तो वो बहुत सारी बातें करेंगे. So they are discussing the budget because budget अभी आया है ना. So they are discussing the budget. So they get part to discuss the budget, to move resolutions, to ask supplementary questions. Right? Can you relate Moore-Minto reforms with this now? दोस्त मिले, so they have the freedom to discuss the budget, to move resolutions, to ask supplementary questions. इसका मतलब ये सब कहाँ हुआ? Moore-Minto reforms में. उसके बाद जब ये सब हुआ तो मोर ने सोचा now let me sit on a rhino and go to Imperial Legislative Council. तो मोर ने क्या करा? उसने सोचा मैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जाकर एक बार देखूं. तो वो कहाँ जाता है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. बहुत ही सुंदर से डेकोरेटेड है उस दिन. ठीक है. तो राइनो पे बैठ के जाता है. तो राइनो से हमें क्या याद करना है? राइनो इज वन हॉर्न राइनो. सींग. सींग से हमें क्या याद आएगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ओके, ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड इनटू द हु वाज अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो हम जनरली सी यू मस्ट हैव फेस्ड दिस नो when there are options given सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्रनाथ टैगोर. सो वी गेट कंफ्यूज्ड कि अच्छा प्रसाद सिन्हा थे कि टैगोर थे, कौन थे. सो अब नाउ देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, आपको खट से पता है अच्छा सिंह था तो सिन्हा था. राइट. सो मोर राइनोसेरॉस पे बैठ के कहाँ जाता है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो राइनोसेरॉस से वन हॉर्न राइनो से हमें सिंह याद आएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. एंड व्हेन ही गोज टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव से क्या याद आएगा? That now Indians were appointed to the Imperial Legislative Council for the first time. And Imperial Legislative Council में जाने के बाद इसने क्या सोचा? अच्छा वहाँ पे जो इंडियन सेक्रेटरीज हैं मैं उनसे मिलता हूँ. That means Council of Secretary of State. So 2 Indians were appointed over there. तो ये 2 Indians हैं Council of Secretary of State में. Right? Let me show you how we can learn this. Just a second. सी अब आपको याद तो हो गया होगा. लेट अस रिलेट विद दिस. मोर था. मॉर्ले-मिंटो से हमने क्या याद करा? मोर. ओके, मॉर्ले-मिंटो मोर. नाउ यू ऑल कैन इमेजिन मोर. मोर को जैसे जैसे आप देख रहे थे तो आपने देखा उसने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने पंख खोल लिए. सो द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इंक्रीज्ड इन साइज. तो आपको ये पॉइंट याद आएगा. द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस इंक्रीज्ड इन साइज. जैसे ही मोर ने पंख खोले थे उसने क्या करा? गाना गाना चालू करा. ही बिगैन सिंगिंग. व्हाई? बिकॉज ही वाज वेरी हैप्पी. क्यों? क्योंकि वो तो रिश्वत दे के ऑफिस में इलेक्ट हुआ था. सो द इलेक्टेड मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली. उसके बाद जैसे वो गाना गा रहा था तो उसने क्या सोचा? चलो अब थोड़ा डांस भी कर लेते, खुशी और ऐड हुई. तो ही स्टार्टेड डांसिंग. व्हाई? बिकॉज उसको ऑफिस जाने की टेंशन नहीं थी क्योंकि पैसे तो वो दे चुका है. सो इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर इन मेजॉरिटी. ठीक, उसके बाद आगे चले. अब उसके बाद मोर ने क्या करा? वो जब उसको ऑफिस नहीं जाना था तो ही थॉट ऑफ कॉलिंग हिज फ्रेंड्स एंड गो टू अ बार. सो when the friends were sitting there, they were talking, they were discussing, so the members could discuss the budget and move resolutions. They could also ask supplementary questions, right? And no discussions on foreign policy was allowed. After that,
इंडियंस वर गिवन. अब जब ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हो गए थे, तो जब मोर अब पूरा बार बार अच्छे से दारू वारू पी ली, तो उसने सोचा चलो अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल चला जाए. सो हाउ ही वेंट टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? बिकॉज वो डांस करके पार्टी करके थक गया था, तो वो राइनोसेरॉस के ऊपर बैठ के गया था. सो इट वाज अ वन हॉर्न राइनो. वन हॉर्न से क्या याद आएगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. वो सींग था ना, वन हॉर्न राइनो, सींग. सो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. सो लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड Satyendra Prasad Sinha as the first Indian member of the Viceroy's Executive Council. Now you would never confuse this name with any other name. After that, when he went to Imperial Legislative Council, so Indians were given membership to the Imperial Legislative Council for the first time. Can you see the beauty? आपको बस एक hint मिला चाहिए and you can frame the sentence. हम क्या करते हैं कि keywords ही भूल जाते हैं. Imperial Legislative Council गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 में था, 1919 में था, 1935 में था, 1861 में था. दैट्स द प्रॉब्लम. सो विद दिस वी कैन वेरी वेल रिमेंबर देम. आफ्टर दैट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाद कहाँ गया था मोर? मोर ने सोचा चलो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पहुंच गया हूँ, तो अंदर चल के सेक्रेटरीज से मिला जाए जो इंडियंस हैं. 2 इंडियंस जो थे सेक्रेटरीज. सो 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. अब आप कभी नहीं भूलोगे कि इंडियंस कहाँ कब अपॉइंट हुए थे, बिकॉज पीकॉक क्या नेशनल वर्ड है, तो वो सिर्फ इंडियन से मिला. सो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर उसने बोला आई वांट टू मीट 2 इंडियन सेक्रेटरीज. दैट मीन्स 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स. आई होप आपको एक बार पढ़ के अब ये मॉडल मिंटो बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे. एंड यू कैन इवन रिवाइज देम वाइल ट्रैवलिंग, वाइल गोइंग टू योर क्लास, वाइल गोइंग फॉर अ party, while going anywhere, while sitting, while bathing, while cooking, while eating, anytime you can remember. Model Minto more अच्छा ठीक है, वो पंख खोले, फिर गाना गाया, फिर ये and it's revised. So revision is very important. आपको याद भी करना है, then you have to revise, because हम क्या सोचते हैं जब पूरा सिलेबस याद हो जाएगा तब रिवाइज करेंगे. And see, you all know that there is a very huge syllabus and it never ends. Even while entering into the examination hall, till the very last minute we keep on reading things. अच्छा ये आ गया, एक बार ये देख लूँ, एक बार ये देख लूँ, right? It happens. So the syllabus is very huge. So you can just learn them at a go and you can also revise them. Because syllabus कभी खत्म होता नहीं है and revision का नंबर कभी आता नहीं है, और हम पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं. So we can revise with these techniques in just a minute, right? So download the PDFs and worksheets for today's session from the link given below in the description. Worksheets will also be provided. Take care that you download them from over there. From there, and in today's session we have learned only 3 techniques: memory palace, journey method and chain method. But this is not only the case, we have numerous such techniques. So in STASH program I will be telling you more than 10 plus memory techniques. And what is STASH? STASH is to put something in a safer place. And हमारी memory से ज़्यादा safe place तो कुछ हो ही नहीं सकता, right? So I'll be telling you 10 plus memory techniques over there. Then how to apply them for UPSC exam. Also you will be getting the worksheets and the PDFs for daily session. For every session you will be getting them. Then there will be 30 plus hour videos, habitat discussions, and the best part is that I will be supporting you throughout your journey. Okay, there will be a constant support from my side. Also, there is a STASH program, there is a STASH preparatory club. Join me on Habitat in this club, STASH preparatory club. We will be having discussions over there. Give me your problems, give me anything, tough से tough चीज़ जो आपको लगती हो, which you think that I cannot learn it. Please send me over there. I will help you. I will tell you how you can learn them. Okay, so we will have a good time over there. Just tell me what you want and I will be there to help you. So I am waiting to see you all on Habitat. Thank you. Have a good day. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.